divided on the other side, it will be multiplied. 5x plus 1 is equal to 7 into 3. 5x plus 1, 7 3s are 21. 1 is being added. On the other side, it will be subtracted. So 5x is equal to 21 minus 1 is 20. Because there is no mathematical operation between 5 and x, which means they are being multiplied. So when you will take this 5 on the right side of the equation, the opposite operation of the multiplication, which is division, will apply. So x is equal to 20 divided by 5, which means the value of x is 4. This is your question number 9a part. 5x plus 1 divided by 3 is equal to 7. 3 was being divided on the right side, it will multiply. 1 is being added on the right side, it will be subtracted. 5 is being multiplied on the right side, it will be divided, and at last you will get the value of x to be 4. I hope रेहान कि आपको सॉल्व आपको आसानी हो गई हो. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन नहीं थी. वाइल बी सी डी ई एफ सब में फ्रैक्शन है, सब में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें. ई और एफ में यू हैव टू टेक एलसीएम और यू कैन यूज द अदर पार्ट. आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, बट यू कैन इफ यू वांट टू टेक एलसीएम then that one is also very easy. Now I'm going to solve your question number 11. अगर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो था कि आप डिनोमिनेटर को राइट साइड पे लेके जाकर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 के ए और बी पार्ट में सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे. पहले आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेके जाके अप्लाई करेंगे राइट साइड पे. इसके बी पार्ट में भी आप डिनोमिनेटर को राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल सॉल्व इट, व्हिच मींस दैट क्वेश्चन नंबर 10 ए एंड बी पार्ट यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. while E, F, G and H, E, F, G और H ये चार. Yes. जी जी पूछें, क्या पूछना है आपने? टीचर आप जो आपने जो किया है टीचर, ये जो अभी आपने सम किया रफ कॉपी पे, वो टीचर मतलब मुझे आखिरी पार्ट समझ आखिरी समझ नहीं आई पार्ट. आपने 5 को डिवाइड किया नीचे जाके. Because there is no mathematical operation between 5 and 6. Please खुद को म्यूट करें ताकि आपको मेरी आवाज जाए. Because there is no mathematical operation between 5 और x, which means 5 and x are being multiplied. तो जब आप 5 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको राइट साइड पे आकर डिवाइड होना पड़ेगा. तो डिवाइड होके आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4. अगर आप में से किसी ने मैंने ये भी पूछा था, अगर प्लस होएगा तो उसको अपोजिट लेकर जाए तो माइनस होएगा, माइनस हो तो प्लस होएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो तो. हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है. Okay, we were talking about question number 10 E, F, G and H. In question number 10 E, F, G and H, there are two fraction and there is an equal to between them. चारों के चारों पार्ट्स में फ्रैक्शंस हैं और उनके दरमियान इक्वल टू का साइन है, which mean in the last 4 parts of question number 10 you have to go for cross multiplication. तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. I will solve only one part from all 4 of these, which will be your A part, H part. So from question number 10, I will solve C, D and H, and you have to solve rest of the parts by yourself. I will solve C, D and H from question number 10, and rest of the parts will be your homework. So this is your question number 10 C part. Question number 10 C part is 32 by 2x minus 5 minus 3 is equal to 1 by 4. 32 by 2x minus 5 minus 3 is equal to 1 by 4. क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर x इन्वॉल्व है, while this number is not involving any variable. So I want to take this, I want to solve this 3 with this 1 by 4. मैं इसको इसके साथ सॉल्व करना चाहती हूँ. So मैं इस minus 3 को अपनी राइट साइड पर ले, अगर आप नहीं लेकर जाना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. सो फर्स्ट आई एम द राइट साइड 32 divided by 2x cos having a negative sign on the left changes to मेगा प्लस में.
32 by 2x minus 5. Now एक फ्रैक्शन और एक नंबर, जब आपके पास एक फ्रैक्शन और एक नंबर को आपने सॉल्व करना हो, you have to take LCM. 1 and 4 3s are 12. LCM आ जाएगा 4, 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 4 3s are 12. 32 by 2x minus 5 is equal to 12 plus 1 हो जाएंगे 13 divided by 4. First of all, I have taken this negative 3 on the right side. Then I have taken the LCM. अगर आप ये LCM लेकर देखें तो देखें दो फ्रैक्शंस आगे जिनके E, F, G और H में बननी है. तो अब मैं H पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी, आप इसी को देख लें तो आप इसी की मदद से अपना बाकी काम कर सकते हैं. ये आपके पास काम था. Now you are having two fractions and there is equal to between them, so I'm going for the cross multiplication. जिन क्वेश्चंस के ऊपर टिक मार्क हुआ हुआ है उन क्वेश्चंस के लिए you will follow the same process which I am following now. So now 4 will be multiplied with 32 and 13 will be multiplied with 2x minus 4 26. 13 5s are 65. अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. You have to multiply this 13 with 5 as well, but minus will remain as it is. Now 128 and 65, these two are like terms, so I'm going to take them on one side, which is the equation, because 68 is having a negative sign, so when you will take this on the left side, this negative will change to plus is equal to 26x. 8 and 5 13, 6 and 2 8 and 1 9, 193 is equal to 26x, because there is no mathematical operation between. Yeah. जी बेटे पूछें. आपकी वीडियो नहीं आ रही. अब्दुल रहमान, अहमद रजा, हैदर अब्बास, हमजा अली, आप सबके कैमरास ऑन होने चाहिए. अब्दुल रहमान, अहमद रजा, हैदर मलिक, हमजा अली. हैदर अब्बास अपना कैमरा ऑन करें. हमजा अली, you both need to turn on your cameras. हैदर अब्बास and हमजा अली. आई होप कि अब मेरी वीडियो में कोई इशू नहीं है, ये स्टक नहीं हो रही. So first of all, I have taken this negative 3 on the other side, then I have taken the LCM, then I have came to the situation in which I am having two fractions and there is equal to between them. At that point, at that situation, I have done the cross multiplication. 4 is multiplied with 32, while 13 is multiplied with 2x minus 5. 32 into 4 is 128. 13 into 2 is 26 minus 13, 5s are 65. 65 was having a negative sign, so when you will take this on the left side of the equation, this negative will change to plus, so 128 plus 65 is 193. Now you can see that there is no mathematical operation between 26 and x, which means they are being multiplied. So when you will take this 126 on the left side of the equation, this will be Miss, divided. Now, if you can see, this 193 divided by 26 is an improper fraction. Improper divide करके mixed fraction में change करने वाला काम class 6 में खुद किया करना. This is your question number 10C part. ये आपका question number 10C part था जिसमें हम पहले -3 को right side पर लेकर गए थे. After taking the LCM, we have done the cross multiplication. At the end, you have to divide it and change this improper fraction to the mixed fraction by yourself. अगर आप में से कोई इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, then please go ahead. This is exercise 5, question number 10C part. Now, अब देखें, आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ डी के लिए थोड़ा सा हिंट ले लें. अब देखें, ये -1 एक इकलौता नंबर है. आप इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएं. जैसे हम यहाँ से -3 को इधर ले आए थे, आप यहाँ से -1 को ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 plus 1 is equal to 1/x plus 2. LCM ले और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें. So I think that these two parts are same, B and C.
So I think you can solve it by yourself. जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सेशन आएगा वहां से आपको ई एफ जी और एच के लिए भी हिंट मिल जाएगी कि आपने वो चारों पार्ट्स कैसे सॉल्व करने हैं। So from question number 10 I have only solved C part. इसमें से D part and all the parts you have to solve it by yourself. ये आज की क्लास का होमवर्क है आपके लिए। एक क्वेश्चन नंबर 10 का C पार्ट के अलावा बाकी सारे पार्ट आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सारा मेरा खुद से करने वाला है, सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 बाय माय सेल्फ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट के अलावा बाकी सारे पार्ट आपके होमवर्क हैं। अपना होमवर्क दोबारा से नोट डाउन कर ले। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 10 एक्सेप्ट सी पार्ट, क्योंकि वो मैंने कर दिया है जो कि यहाँ पर है। अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है या इसमें से कुछ पूछना है तो देन गो फॉर इट। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन गो फॉर आस्किंग क्वेश्चन वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 10 is your homework in C part is right now I'm showing you from my notebook. Okay, now I'm going to start my question number 11 A part. 11 में से आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये सारे पार्ट्स मैं कर दूं because they are little difficult for you. Not that much, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कर देना चाहिए। This is your question number 11 A part. 10x minus 5x plus 4 divided by 3 is equal to 7. This is your question number 11 A part. साथ साथ समझ लीजिएगा, इसको दोबारा से रिपीट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। So first of all I'm going to take the LCM from left side. LCM आपके पास आ जाएगा 3 और 10 3s हो जाएगा 30x. ड्यू टू दिस माइनस, इस माइनस की वजह से मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, ब्रैकेट। अगर माइनस के बाद आपके पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, मेरे माइनस के बाद दो टर्म्स थी, तो इसका मतलब है कि आपको ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। मेक श्योर मैं माइनस के बाद वाली बात कर रही हूँ, माइनस से पहले वाली बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपने क्वेश्चन बुक 11 के बी पार्ट देखें तो इसमें माइनस के बाद दो टर्म्स हैं, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे। इस सी पार्ट में माइनस के बाद दो टर्म्स हैं, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। डी पार्ट में माइनस के बाद दो टर्म्स हैं, एलसीएम लेंगे तो नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ई पार्ट में माइनस के बाद एक टर्म है, एलसीएम लेके ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। एफ पार्ट में माइनस के बाद ये देखें दो टर्म्स पड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम लेके तो ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास माइनस के बाद दो टर्म्स आएंगी तो माइनस के बाद माइनस से पहले लें। हर बार जो माइनस के बाद दो टर्म्स आएंगी तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, because right now in question number 11A part I am having two terms after negative, that is why I have to use minus, and it will be 5x plus 4 is equal to 7. 30x, because I'm going to take this minus inside my bracket. जब आप इस नेगेटिव को ब्रैकेट के इनसाइड लेकर जाएंगे द साइन इनसाइड विल चेंज। माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इज इक्वल टू 3 इज बीइंग डिवाइडेड ऑन द राइट साइड, इट विल बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 30x एंड 5x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 30x minus 5x हो जाएगा 25x. This 4 is having a negative sign. Minus 4 is equal to 7 3s are 21. T5x is equal to 21 minus, which is no mathematical operation between 25 and x. 25 और x के दरमियान कोई भी mathematical operation नहीं है. You can take this 25 on the other side by dividing it. 25 divided by 25 is 1. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट का आंसर आपके पास क्या आया, 1. Let me repeat it. First of all, we have taken the LCM. 10 3s are 30. Due to minus, I have to use bracket. When you will take this minus inside the bracket, the sign will change. 3 was being divided on the other side, it will be multiplied. 30x minus 5x is 25x. 4 was having negative sign.
On the right side, this will change to plus 25x is equal to 5, and at last we got the value of x to be 1. This was your question number 11. अगर आप Excuse me, teacher. yes रेहान टीचर आपकी वीडियो एकदम से स्टॉप होती थी, फिर जब वापस आती थी इतनी तेज हो जाती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। okay just 1 minute चले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कैमरा ज़्यादा हिले नहीं क्योंकि वीडियो उसी से स्टक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है। सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम के बाद मैंने माइनस की बाद दो ब्रैकेट यूज की है। 3 डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30x minus 5x is 25x. 4 is having negative sign on the right side, it will have a plus sign. 21 plus 4 is 25. 25x is equal to 25 because there is no mathematical operation between 25 and x. So when you will take this 25 on the other side, it will be divided. And after division, you will get the value of x to be 1. किसी ने screenshot लेना तो please ले लो. This is your question number 11A part. Okay, now I'm moving towards my question number 11B part. This is your question number 11B part, which is 4x divided by 3 minus x minus 1 divided by 2 is equal to 1 whole 1 by 4. This is your question number 11B part. On the left side, first of all, I will take the LCM because I have two fractions. Yes. जी अब्दुल रहमान, क्या सवाल पूछना आपने? बेटे पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? Homework is question number 10 only. Yes, question number 10 is your homework. Okay. Right now I am solving question number 11B part, and first of all I have to solve two fraction, that is why I will take the LCM. 3 और 2 का LCM कितना होता है? 6. E का टेबल पढ़ेंगे 3 2s are 6. E का टेबल पढ़ेंगे 6 है 2 3s are 6. Now we have to multiply. 2 को मल्टीप्लाई करना है 4x के साथ माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है x minus 1 के साथ. 4 1s are 4 plus 1 will be 5 by 4. I have taken the LCM of 3 and 2, which is 6. 3 2s are 6. 2 3s are 6. I have to multiply 2 with 4x minus 3 with x minus 1 is equal to 4 1s are 4 plus 1 will be 5 by 4. 2 4s are 8x minus 3 into x is 3x minus plus 3 1s are 3 divided by 6 is equal to 5 by 4. 8x minus 3x, 8 में से 3 गए, it will be 5x plus 3 divided by 6 is equal to 5 by 4. अब आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गए जिनके दरमियान क्या आ गया है? इक्वल टू. इसका मतलब है यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये सवाल आपने खुद कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज 11B मैंने हाफ पार्ट किया है. डू योर सेल्फ, ये खुद काम कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज 11B आपके पास देखें, you are having two fraction and there is equal to between them, which means that you will go for the cross multiplication. इसका मतलब है कि ये फिर से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 वाला सब बन गया है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11B पार्ट, योर होमवर्क. आई होप Excuse me, teacher. यस रेहान.
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सिर्फ बी पार्ट है। जी, क्वेश्चन नंबर 11 का सिर्फ बी पार्ट है, क्योंकि ये हाफ मैंने कर दी है, इसको कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है। टू फ्रैक्शंस एंड इक्वल टू, व्हिच मींस दैट यू गो टुवर्ड्स द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, काम अपने आप हो जाएगा। ओके। आई होप कि आप सबको क्लास 7 में सबको अपना होमवर्क पता चल गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट से आज स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया था। 5A क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट से हमने स्टार्ट किया था। ये आपका 5A क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। देन वी हैव सॉल्व्ड 5A क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट, जिसमें आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में खुद चेंज करना था। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11A पार्ट, जो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट को मैंने हाफ सॉल्व किया है। यू हैव सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट बाय योरसेल्फ। कि आज का आपके लिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने कंप्लीट करना है, और 11 का बी जो है वो मैंने हाफ सॉल्व कर दिया है, वो आपने हाफ खुद सॉल्व करना है। आप खुद को अनम्यूट कर लें, और अगर कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं देन प्लीज गो अहेड। आज के सेशन में से अगर आपको किसी सवाल को आप चाहते हैं मैं दोबारा दिखा दूं तो भी मुझे बता दें, और अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है तो वो भी पूछ लें। Hamza Ali, you need to turn on your camera. Ahmed Raza, you need to turn on your camera as well. क्लास 6 अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में से या आज के कॉन्सेप्ट में से कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही कि उसको कैसे करना होता है, तो आप प्लीज पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगी इस बारे में। एक्सक्यूज मी टीचर, यस रेहान। क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट, देखिए मैं आपको गाइड करती हूँ इस सिलसिले में कैसे करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट। जैसे हमने सी पार्ट में किया था ना कि पहले हम -3 को राइट साइड पर लेकर गए थे और हमने एलसीएम लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 के डी पार्ट में आप करेंगे कि आप -1 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे आपने सी पार्ट में -3 को 1/4 के साथ ले गए थे ना, वैसे आप यस। -1 को 1/2 के साथ ले जाएं, फिर उसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। ये देखें, हम -3 को पहले 1/4 के साथ लेकर गए थे, फिर हमने एलसीएम लेके फ्रैक्शन बना ली थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी। डी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहले आप -1 को 1/2 के साथ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/x + 2। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बनी हुई है, 32/2x - 5 इज इक्वल टू 13/4। तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/2 इज इक्वल टू 1/x + 2। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/2 इज इक्वल टू 1/x + 2। वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसकी कैलकुलेशन डी पार्ट सी पार्ट से भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ओके। क्लास 6 कोई और चीज जो आप पूछना चाह रहे हैं। अहमद रजा, आपका कैमरा क्यों बंद हो जाता है? Momin Abdul Ghaffar, is there anything that you want to ask from today's session? टीचर नो। कोई ऐसी चीज मोमिन जो आपको अभी भी डिफिकल्ट लग रही हो चैप्टर 5 में से, जो आपको समझ ना आ रही हो, तो प्लीज पूछ लें। नहीं टीचर, मुझे समझ आ गई थी। मोहम्मद उमर नूर शमसी, और आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो प्लीज सर हिला के मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं।
क्या पूछना है उमर? इसके लिए तो आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। टीचर ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट समझा देंगी? जी मैं बताती हूँ। This is your question number 11 A part. 11 के A part में in the first step I have taken the LCM. 10 3s हो जाएगा 30 माइनस आ गया है और आगे दो टर्म्स है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। When you will take this minus inside the bracket तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे। माइनस 5x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 30x minus 5x is 25x minus 4 is equal to 3 7s are 21. 4 is being subtracted on the right side, it will be added. So 25x is equal to 25 because there is no mathematical operation between 25 and x, which means they are being multiplied. So when you will take this 25 on the right side, it will be divided. So 25 divided by 25 is 1. So your value of x is 1. This is your question number 11A part. First of all, you have taken the LCM. ब्रैकेट यूज करनी है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो प्लीज ले लें। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में से की पिक्चर आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं शो कर देती हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उमर हो गया सॉल्व? कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उमर आपको इसमें? नो। Hamza Ali, is there anything that you want to ask? Hamza, Ahmed Raza, हैदर अब्बास, तीनों अपना कैमरा ऑन करें। हमजा, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं? नो टीचर। हमजा, आप मुझे बताएंगे कि आज होमवर्क क्या मिला है? जी जी, क्या होमवर्क मिला है हमजा, मुझे बताएं। हमजा, आपको तो पता ही नहीं होमवर्क क्या मिला है। अहमद रजा जरा खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं होमवर्क क्या दिया गया आज क्लास 6 को। टीचर क्वेश्चन नंबर 10 और 11। हाँ जी, 11 का बी पार्ट हाफ सॉल्व करना है और 10 के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले आपका होमवर्क चेक होगा, फिर आपके काम वी विल स्टडी फर्दर। गुड मॉर्निंग। बट